اور میں اللہ کا بندہ اور آخری نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے حق دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، استقبال ہے، خیر مقدم ہے، سواگت ہے آپ سبھی کا میرے اس چینل عامل حکیم پر۔ دیکھا اور سنا آپ نے اس خبیث کو، مردود و ملعون کو، یہ نہایت ہی گھٹیا اور گرا ہوا جانوروں سے بھی بدتر ہے، جو اپنے آپ کو معاذ اللہ آخری نبی اور رسول کہتا ہے۔ قرآن و حدیث میں سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن یہ بات واضح ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں، اور تمام انبیاء کے امام و تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ باوجود اس کے یہ خبیث، یہ ملعون، یہ مردود، یہ مکار، بے شرم، بے حیا، کمینہ، یہ شیطان، یہ ابلیس کی اولاد، یہ ڈھونگی، یہ پاکھنڈی، اور جتنا غلط الفاظ کا استعمال کرو وہ کم ہے، یہ کم ظرف آخری نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو بولنے کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو کیا عمر فاروق نہیں ہوتے؟ حضور کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کیا عثمان غنی نہیں ہوتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کیا مولا علی نہیں ہوتے؟ امام حسن، امام حسین، غوث پاک وغیرہ بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، کیا وہ نبی نہیں ہوتے؟ لیکن ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں آئے گا۔ نبوت کا سلسلہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، لہٰذا ہمارے حضور، ہمارے رسول حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے سردار اور آخری نبی و رسول ہیں۔ اور یہ چڈی چور، مرغی چور اپنے آپ کو نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دوستو، آپ ہی لوگ فیصلہ کیجئے، کمنٹ کیجئے کہ اس شخص کے بارے میں، اس مردود و ملعون کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اسے کیا کہنا چاہیے؟ قانوناً اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اسے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، اس لیے کہ اس نے تمام دنیا کے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے، ٹھیس پہنچایا ہے۔ بڑا دکھ ہوا کہ جب اس نے معاذ اللہ اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور خود کو نبی کہتا ہے، آخری نبی، آخری رسول کہتا ہے، معاذ اللہ۔ میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا، بھولے بھالے مسلمانوں، ایسے مکاروں کے، ایسے مردودوں کے آپ لوگ چکر میں نہ پڑیں، ان کی باتوں میں نہ پڑیں۔ یہ مکار، یہ مردود، یہ ملعون ہے۔ یقیناً ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ ہمارے حضور کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور میرے اس چینل عامل حکیم کو سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور ایسے غدار، ایسے بے شرم، بے حیا لوگوں سے بچتے رہیے۔ دین حق پر چلنے کی کوشش کیجیے، راہ راست پر چلنے کی کوشش کیجیے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہم سب کی ایمان و عقائد کی حفاظت فرما کر ایمان پر خاتمہ فرمائے۔
और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। मुसलमानों का ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ वही सच है, आपकी क्या सच है? जो मैंने कह दिया आपको। नहीं, हम मुसलमान अल्लाह के नबी की उम्मत में है ना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। ये कैसे कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ। मैं तो सामने कितनी बार गए थे, लोग समझ ही नहीं रहे। मुसलमान नहीं है आप? हूँ, मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? जरा मैं सीरियस कह रहा हूँ, गलत कर रहे हैं आप। मैं सच कह रहा हूँ। चाहे आप मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह का, मेरे पास वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है आपके जिब्रील पास? सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे दिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील कभी तो किताबों के जरिए वही आती है, किताब भेजते हैं अल्लाह आपसे? कभी किताबों के जरिए जैसे वही आती है, कभी इंसान के शक्ल में वही आती है मेरे पास। क्या बोलते हैं? बस कि लोगों दावत दो, क्या ऐसा। दावत दो? पहले तो यही दावत थी, नहीं किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। करने वाली जात अल्लाह की है, नफा नुकसान देने वाला अल्लाह है, इज्जत का जिल्लत का देने वाला अल्लाह आप है। मुसलमान हैं? हाँ, आप कुरान को मानते हैं? लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो आप नहीं, जो मेरी बातों का कुछ जवाब दें आप। आप तो मुझे फंसाओगे। नहीं नहीं नहीं, आप कुरान को मानते हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो पहले। सुनाइए, आप सुनाइए तो। मेरे आप सुना दे जो सुनाना है। मेरे चंद सवालों का जवाब आपको मेरी देना एक बात पड़ेगा। आप सुनो। सुनाइए। मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है, जो वही आएगी वही करूंगा। आज तक मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ और मुझे इस दुनिया में आगे भी मैं वही करूंगा। जो मेरे पास वही आएगी मैं आगे लोगों को बताता रहूंगा। क्या हुक्म है अभी तक अल्लाह का? अभी तो बस यही है कि लोगों को बताना है सबको कि क्या बताना? इस दुनिया में जितनी ये शकल है इनसे कुछ नहीं होता है। किससे होता है? अल्लाह से होता है। अच्छा, हाँ, और कुछ बताओ फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। और अब जब भी मैं देखो अभी तक अल्लाह जो मुझसे कहते हैं ये बस यही है, लोगों को दावत देना है कि लोगों को अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ बुलाना है। क्यों? सबको बनाने वाला अल्लाह है। जितने भी दुनिया में इंसान है, जानवर हैं, परिंदे हैं, जितने भी अल्लाह की, सब अल्लाह की मखलूक है और मैं आखिरी नबी हूँ अल्लाह का। आप मौलाना हैं या हाफिज हैं? मैं कुछ नहीं, अनपढ़ उम्मी हूँ मैं। जमात में गए कभी? हाँ, अल्लाह ने भेजा। कितने दिनों के लिए? 4 महीने के लिए जमात में गया था, महाराष्ट्र अहमदनगर। तो जमात में जाकर के यही सीख करके आए आप? अल्लाह ने जो सिखाया वही सीखा हूँ। नहीं, अल्लाह ने सिखाया आपको कि आप नबूवत का दावा करें? हाँ, बिल्लाह, अल्लाह ने मुझसे कहा है। आप पता है आपको मालूम होना चाहिए ये आप क्या कर रहे हैं। मुझे ये कुरान और हदीस हमें बताती हैं कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है और आखिरी नबी हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। अल्लाह का नबी हूँ, ये एक दिन होगा और ये है, ये होगा। जब इंसान दुनिया में ये चाह रहा है कि कुछ हो, कुछ मौजिजा देखना चाहता है, तब यकीन लाना चाहते हैं। चलो ठीक है, आपने कहा मौजिजा, तो आप नबी का दावा कर रहे हैं, वनाउज़ुबिल्लाह, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ आपकी बात को अभी। और क्या मौजिजा आप दिखा सकते हैं कुछ? फिर अल्लाह दिखाएगा, मेरा तो काम है। अल्लाह तो मौजिजा दिखाता ही है। अभी तो अल्लाह ने मुझे यही आपके जरिए अल्लाह ने क्या मौजिजा दिखाया? आप क्या मौजिजा दिखाना चाहेंगे? अभी मुझे अल्लाह ने इतने हुक्म दिया कि लोगों को बताओ। क्या बताओ? यही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और मुसलमान आप हैं? हाँ, मुसलमान हूँ मैं। कुरान शरीफ को मानते हैं? देखो मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। नहीं, जो मेरी मैंने आपकी सारी बातें सुनी। आप कुरान शरीफ को मानते हैं बतौर एक मुसलमान या नहीं मानते? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, मेरी बात का जवाब मैं दीजिए। वो कर रहा हूँ जो अल्लाह का हुक्म है। मेरी बात का जवाब दीजिए। इस बारे में अल्लाह का हुक्म आपके लिए क्या है कि आप एक मुसलमान होकर के, चेहरे पर आपके दाढ़ी है, सर पे टोपी है, आप नमाज भी पढ़ते हैं, आप जमात में भी होकर के आए हैं 4 महीने के लिए, तो क्या कुरान शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है कि नहीं है? अल्लाह की किताब है। कुरान है अल्लाह की किताब।
क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पर? देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि मैं ये आखिरी मेरी वाली बात हमने आपकी सुन ली है, हाँ मेरी बात का जरा जवाब दीजिए। बताओ। कुरान पाक पर आपका यकीन है? कुरान हक है और सच है। और कुरान कहती है, हदीस कहती है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, तो आप ये फितना क्यों फैला रहे हैं? मैं फितना नहीं हूँ, मैं हकीकत में हूँ। जवाब देने से क्यों बच रहे हैं आप? क्यों बताओ? मैं आपने जो आप कुरान को मानते हैं? हाँ कुरान हक है, सच है, अल्लाह जो की लिखा किताब उसमें सच है हाँ सच है। या कुछ झूठ भी है? नहीं तो कुरान सब कलाम पाक पूरी सच है ना? हाँ कुरान सच है। तो कुरान शरीफ में लिखा है कि कोई नबी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? लेकिन अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो मैं फिर हूँ नबी। दो बातें हर एक नहीं, दो तुम्हारी बातें एक साथ नहीं हो सकती। या देखो, तो आप कुरान को झुटलाइए, तो मैं ये कह तो रहा हूँ, मेरे पास नाउजुबिल्लाह, कोई कुरान को झुटला नहीं सकता मुसलमान। आप मेरी बात सुनो, मेरे पास आगे वही आ जाएगी, तुम्हारा हर एक जवाब मिल जाएगा। इनकार मैंने कब करा? कुरान में लिखा है ना कि नबी आखिरी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो ये इनकार हुआ क्या हुआ? जब आप दावा कर रहे हैं तो मैं इनकार हुआ क्या आगे हुआ? आपको बता रहा, मैं वही आएगी आगे, मैं आगे और आपको बता दूंगा। अभी तो अल्लाह ने मुझे यही कहा है, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे पास वही आई है। मोहम्मद अल्लाह के नबी थे कि नहीं थे? देखो जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। जो मैं कह रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। आप ऐसे गुमराह नहीं कर सकते। आप किसी बड़ी तंजीम से, किसी से मिले हुए हैं, ये ऐसा लगता है, क्योंकि दिमागी संतुलन आपका ठीक है बिल्कुल। जिसने कलमा पढ़ रखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने उसी की तारीफ फरमाई। अब कलमे को पूरा करिए, ला इलाहा, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप ऐसे क्यों बोलूं? तो मानते हैं, लेकिन कुरान के विपरीत खुद वनाउजुबिल्लाह नबूवत का दावा भी कर रहे हैं। तो अपने आप में ये एक झूठ क्लियर है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुझे रसूल मानेगा तो कामयाब है, और आपको रसूल कोई नहीं मानेगा तो कामयाब भी नहीं होगा।